بلیٹن میں خوش آمدید اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی سے تمام غیر قانونی مویشی منڈیاں ختم کرانے کا حکم کمشنر کی منڈیوں سے ناجائز ٹیکس ختم کرنے بھتہ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت غیر معیاری سلنڈرز کے مکمل خاتمے تک بھرپور آپریشن کا بھی حکم اجلاس میں کراچی پولیس چیف ڈی آئی جی ٹریفک ایس ایس پیز اور دیگر افسران کی شرکت ڈپٹی کمشنر ایسٹ اور ڈی سی کے ماڑی کو سخت ایکشن لینے کی ہدایت آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فوڈ توسیع منصوبہ اور سوشل پروٹیکشن پروگرام تیز کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ بولے کہ فوڈ توسیع منصوبے سے 260 MGD اضافی پانی کراچی کو فراہم ہوگا منصوبہ 71.8 ارب کی لاگت سے مکمل ہوگا کے بی فیڈر کی لائننگ کا کام تیزی سے جاری وزیر اعلیٰ سندھ سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی 10 رکنی وفد کے ہمراہ ملاقات K4 منصوبے سوشل پروٹیکشن اور دیگر امور پر تبادلہ خیال انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی یا میخانہ خواتین کے بیت الخلاء میں شراب کی خالی بوتلوں کی ویڈیو صرف سٹی 21 پر بیت الخلاء میں موجود 2 شراب کی بوتلیں پس پردہ بہت کچھ بیان کرنے لگی شراب کی بوتلیں موجود ہونا بورڈ آفس کے لیے سوالیہ نشان بن گئی ناظرین بتاتے چلیں کرولا گینگ نے کینیڈا ریٹرن فیملی کو بھی نہ بخشا ڈاکوؤں نے رضویہ کے علاقے میں کینیڈا پلٹ فیملی کو لوٹ لیا $6,000 لے اڑے پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی NICH اسپتال یا پارکنگ پلازا قومی ادارہ صحت برائے اطفال اسپتال کے گیٹ سے لے کر ہر کونے میں پارکنگ ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف کی گاڑیاں جگہ جگہ کھڑی کاریں موٹر سائیکل اور دیگر گاڑیاں بے ڈھنگی پارک گاڑیوں کی لمبی قطاریں چوکیدار بے بس مریض اور عملہ پریشان اسپتال ڈائریکٹر معاملے پر موقف دینے سے گریزاں بڑی فتح کا بڑا جشن پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے پوری قوم یک زبان حکومت سندھ کی جانب سے یوم تشکر اور یوم فتح کی شاندار تقریب سجائی گئی صدر مملکت کا پاک فوج کو خراج تحسین پیش بولے آخری دم تک پاکستان کی حفاظت کرتے رہیں گے وزیر اعلیٰ کا شہداء کے لیے 1-1 کروڑ زخمیوں کے لیے 10-10 لاکھ روپے دینے کا اعلان تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں جانیے آپریشن بنیان مرصوص دفاع کی دیوار فتح کی نوید مقامی ہوٹل میں آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حکومت سندھ نے شاندار تقریب کا اہتمام کیا سیاسی شخصیات سمیت پاک فوج ایئر فورس اور نیوی کے اہم افسران کی شرکت تقریب میں ویڈیو پیغام کے ذریعے صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ عوام اور فوج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ہماری بہادر فوج نے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا اور میں چاہتا ہوں کہ یہی یونٹی آپ کی رہے انشاءاللہ پاکستان ہم سب ساتھ ہیں تو دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اس ہمارے کو جو فتح ملی ہے یہ ہمارے بہادر فوجیوں کی ایمان پہ ان کی طاقت پہ اور ان کے حوصلے پہ ملی ہے تو میں ان کے حوصلے کو بھی ان کی طاقت کو بھی ان کی سوچ کو بھی تسلیم کرنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ 10 مئی کا دن اب تاریخ بن گیا سندھ سے پہلا شہید مختار لغاری ہے تمام شہداء کے لیے 1-1 کروڑ روپے اور زخمیوں کے لیے 10-10 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں 10 تاریخ کو پھر فجر کے وقت انہوں نے حملہ کیا وہ 10 مئی جو تھی ایک اس حساب سے تو تاریخی دن ہے کہ اس جنگ اس دن ہوئی میں حکومت سندھ کی طرف سے ان سب شہداء کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا اعلان کرنا چاہوں گا جو ان کو ملیں گے ان سب انجرڈ کے لیے 10-10 لاکھ روپے کا اعلان کرتے ہیں حکومت سندھ پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی صدر فریال ٹالپور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور پاک فوج کے سربراہ کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے تدبر کے ساتھ دشمن کو شکست دی I also want to congratulate Supreme Commander of the Armed Forces President Asif Ali Zardari, the Chief of Army Staff, Services Chiefs, and especially the Shaheens of Pakistan Air Force. The competence and bravery of our pilots surprised
much larger and better equipped Indian forces. सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन बोले, पीपल्स पार्टी की 3 नस्लें इस जंग में शामिल थीं। पाकिस्तान की तारीखी फतह पर आज हम यौम फतह मना रहे हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा की खुसूसी हिदायतों पे सिंध भर के तमाम अजला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यौम तशक्कुर और यौम फतह दोनों को मनाया जा रहा है। हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम एयरफोर्स के नौजवानों को, हम सलाम पेश करते हैं अपने तमाम फौजी जवानों को, हम सलाम पेश करते हैं हमारे तमाम नेवी के वो अफसरान को। तकरीब के मेज़बान वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने अपने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध भर में यौम फतह मना रही है। ये तकरीब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत पर मुनक़िद की गई है। फोर्सेस ने जो कामयाबियां हासिल की वो सबके सामने है, और आज के दौर में जहां पे ये अस्करी लड़ाई के साथ साथ मीडिया का बड़ा अहम रोल था, एक वो भी बड़ी जंग थी जो उनकी मीडिया और सोशल मीडिया की तरफ से शुरू की गई, जिसको हमारी मीडिया के जो माहिर उनमें बहुत बड़ी तादाद आज यहाँ पे मौजूद है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। यौम तशक्कुर की तकरीब में शुदा के वर्सा, टीवी एंकर्स और सोशल मीडिया पर अहम किरदार अदा करने वालों को शील्ड से नवाजा गया। तकरीब के आखिर में मारूफ गुलकार साहिर अली बगा ने मिली नगमे गाए। मिली नगमों पर वज़ीर आला सिंध फरियाल तालपुर, शर्जील इनाम मेमन और दीगर स्टेज पर हम आवाज़ होकर कौमी परचम लहराते रहे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब तक 130 से ज़ायद गाड़ियों का मुआयना और 39 पर चालान किया जा चुका है। रिपोर्ट कर रही हैं अक्सा शेख। अब अद्वियात का रॉ मटीरियल पाकिस्तान में बनेगा। वैक्सीन भी मकामी सतह पर तैयार की जाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ा ऐलान कर दिया। मकामी होटल में सेमिनार से खिताब में उनका कहना था कि भारत की औकात नहीं कि वो हमारा पानी बंद करे, हम मुश्किल वक्त में भी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में देखिए। अद्वियात का रॉ मटेरियल खुद बनाएंगे, किसी पर इन्हिसार नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का बड़ा ऐलान। मकामी सतह पर वैक्सीन की प्रोडक्शन की नवीद सुना दी, एक्सपोर्ट करने की भी ख्वाहिश जाहिर कर दी। हम अपना रॉ मटेरियल बनाएंगे, हम अपनी इंडिजिनस रॉ मटेरियल भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, और अपनी दवा खुद बनाएंगे और विद इन नो टाइम बनाएंगे। इसी हवाले से ये जो आप पीछे मंजर देख रहे हैं, 2 दिनों से WHO और यूनिसेफ के ताउन से पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज का यहाँ पर सिर्फ इस वाली बात पे इज्तिमा था कि क्या वो काम करें कि हम लोकल वैक्सीन प्रोड्यूस करें। मकामी होटल में यूनिसेफ और WHO के ज़ेर एहतमाम सेमिनार। मकामी सतह पर अद्वियात और वैक्सीन की तैयारी पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अपने खिताब में उनका कहना था कि अल्लाह ने पाकिस्तान को अजीम फतह दी है। आज का पाकिस्तान 20 रोज़ पहले के पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। मुश्किल हालात में अच्छी कारकर्दगी हमारे DNA में शामिल है। पाकिस्तान को कभी सरंगू नहीं होने देंगे। When it comes to the survival of Pakistan, when it comes to show the entire world that we are a nation, a united nation or not, we have proven. The Pakistani Qawm, the nation of Pakistan, each and every soul who lives here in Pakistan has proven to the world that yes, we are one nation, हम मुत्तहिद हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सेहत के शोबे में अच्छी चीज़ें भी जल्द सामने आएंगी। कैमरामैन राना झांजेब के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। गुलशन इकबाल में 2 उलमा के कत्ल का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 साल बाद मुकदमे का फैसला सुना दिया। मुलजिम सैयद मोहसिन अब्बास उर्फ पागल को 4 मरतबा सजाए मौत सुना दी। मुलजिम ज़ैनुल आबदीन को 4 मरतबा उम्र कैद की सज़ा।
दोनों मुलजमान को गैर कानूनी असला रखने पर 5 साल कैद और 50,000 जुर्माना। SBCA की जानिब से रिहायशी प्लॉटों पर कमर्शियल सरगर्मियों का मामला। SBCA ने कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। DG SBCA इसहाक खोड़ो की जानिब से अदालत में जवाब जमा। सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर हुक्मनामे के बाद दरखास्त निपटा दी। AG कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रफाई प्लाट पर तामीरात का केस। सोसाइटी की जानिब से गैर कानूनी तामीरात और कब्जे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने मामला आईनी बेंच के रूबरू भेजने का हुक्म दे दिया। इश्तियाल अंगेजी और डंपर जलाने का मुकदमा। तफ्तीशी अफसर की जानिब से केस प्रॉपर्टी पेश कर दी गई। ATC ने आफाक अहमद और दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 24 मई की तारीख मुकर्रर कर दी। 8वीं जमात की तालबा के मुबैना अगवा के बाद शादी का केस। आईनी बेंच ने पुलिस को लड़की की दस्तावेजात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। पुलिस को लड़की की बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल सर्टिफिकेट की तस्दीक की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस एहलकार असलान खान पर लड़के से बदफैली का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस एहलकार की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुलजिम पुलिस एहलकार को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दे दिया। नादरा की जानिब से कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का केस शहरी जाकिर हुसैन ने अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने दरखास्त पर नादरा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सगे बेटों का बाप को छुरियां मारकर कत्ल करने का केस। अदालत ने दोनों मुलजमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए तहवील में दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के अख्तिताम पर ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। 100 इंडेक्स में 1425 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,19,161 की सतह पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1425 पॉइंट्स के नुमाया इजाफे के साथ 1,19,961 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स बुलंद तरीन 1,19,990 और कम तरीन 1,18,871 पॉइंट्स रही। माहिरीन के मुताबिक तेजी की बड़ी वजह IMF की जानिब से $1 अरब से जायद की किस्त की मंजूरी है, जिसने माशी इस्तेकाम से मुताल्लिक तवक्कुआत को मजबूत किया है। साथ ही सर्कुलर डेट के मुमकिन हल से जुड़ी खबरों ने भी मार्केट पर मुस्बत असर डाला। देखिए, सबसे पहले तो अच्छी बात आपने बताई कि IMF से जो $1 बिलियन की जो किस्त है वो रिसीव हुई और अब जो है बजट का इंतज़ार है। बजट की तजावीज़ आना शुरू हो चुकी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बजट में टैक्सेशन में जो ऑलरेडी टैक्स पे करें, अगर उनके टैक्स में कुछ कमी की जाएगी तो बाज़ार जो है जाहिर सी बात है रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ बिल्कुल भी टैक्स अप्लाई नहीं होता, तो उनको टैक्स नेट में लाएंगे, तो जिससे हमारा FBR का टारगेट बढ़ेगा और जो है आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। माशी माहिरीन कहते हैं कि IMF किस्त की मंजूरी ने बैरूनी फाइनेंशियल सपोर्ट का सिग्नल दिया है। अगर पॉलिसियों में तसलसल रहा तो ये तेजी बरकरार रह सकती है। जी, वो तो पाकिस्तान को रिसीव भी हो गया है और उसके साथ दूसरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी भी वर्चुअल जो है ना वो मीटिंग चल रही है। इंशाल्लाह वहाँ से भी अच्छा आउटकम आएगा। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस एवेन्यू जो अभी सबसे ज़्यादा आपको जिसको रिटर्न कह सकते हैं वो स्टॉक मार्केट है। PIBs का भी रिटर्न कम हुआ है जब से आपका पॉलिसी रेट कम हुआ है, तो फिक्स इनकम है वहाँ पे भी जो है ना वो रिटर्न है सरमायाकारों को कम मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव जो एवेन्यू है वो स्टॉक मार्केट है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मुस्बत कारकर्दगी ने एक बार फिर ये साबित किया है कि बेहतर पॉलिसी साजी और बैनुल अक़वामी एतमाद से मईशत में बेहतरी मुमकिन है। कैमरामैन आगा रफी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नाजरीन, मईशत के लिए अच्छी खबर है। अप्रैल 25 तक एक साल में बैंकिंग डिपॉजिट्स में 3,901 अरब रुपए इजाफे से 32,300 अरब रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। मुल्की माशी सूरत में बेहतरी। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 24 के मुकाबले 25 में बैंकिंग डिपॉजिट में 13.70% का इजाफा हुआ, जिससे अप्रैल 25 तक बैंकिंग डिपॉजिट 32,316 अरब रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए, जबकि अप्रैल 24 में बैंकिंग डिपॉजिट 28,415 अरब रुपए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में बैंकिंग डिपॉजिट्स में 3,901 अरब रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि एक माह में बैंकिंग डिपॉजिट्स में 690 अरब रुपए का इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है कि बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट के बढ़ने का मतलब मईशत दस्तावेज हो रही है। अशरफ खान, सिटी 21। वादी मेहरान के तहजीबी निशान, अजरक, टोपी और आम इंसानों के जज्बात, रस्म और रिवाज की अक्कासी करती नुमाइश संबारा आर्ट गैलरी में सज गई। सिंध की तहजीब और सकाफत और सूफी रंग नुमाया तौर पर अयां है। रिपोर्ट कर रहे हैं राहील बेग। सिंध की सकाफत का बसरी जश्न, वादी मेहरान के रंगों में ढली नुमाइश महकमा सकाफत और यूनेस्को के इश्तराक से संबारा आर्ट गैलरी में सज गई।
नुमाइश में फोटोग्राफी को एक खामोश जबान के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसमें न सिर्फ सिंधी सकाफत की झलकियां दिखाई बल्कि एक ऐसा बसरी सफर पेश किया जिसमें रिवायती लिबास, दस्तकारियां, मेलों की गहमा गहमी, देही जिंदगी की सादगी और मुकामी लोगों की मुस्कुराहटों को नाकाबिले फरामोश तजर्बे की सूरत में नुमाया किया गया। मीडिया फोरम हमारा एक फोरम है फनकारों का, जिसमें फनकारों के लिए कुछ नए और खुश आइंद जो है ना चीज़ें लेकर आए हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं, तो उससे भी मेरा ताल्लुक है। ये बहुत ज़रूरी होती हैं और ये बहुत कम है यहाँ पे। मतलब इससे पहले भी मेरे ख्याल एक हुई थी एग्जीबिशन काफ़ी साल पहले। सिंध का जो कल्चर है ये सोलो ट्रैवलिंग करती हूँ, और यहाँ जब ये इस तरह की एग्जीबिशंस होती हैं तो ये हमें बहुत बहुत फैसिनेट करती है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, यहाँ पे एग्जीबिशन हुई, मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, मैं और बनाऊँ। तो मैं चाहता हूँ वो जो इस फील्ड से नहीं है, डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड या कुछ भी, उनको अपने कल्चर के रिलेटेड या किसी और के रिलेटेड नॉलेज मिल सकती है। तो इस हिसाब से मैं चाहता हूँ और भी होनी चाहिए इससे। डीजी कल्चर मुनव्वर अली मेहसर का कहना था, नुमाइश का मकसद सिंध की सकाफत और फनकारों को रोशनास करवाना है। सिंध की कदीम मौसीकी के सासों के हवाले से भी तहकीक जारी है। सबसे अहम चीज़ जो है यहाँ पे हमने बोनिडो को फोकस किया है। जनाब बोनिडो वो साज है जो हज़ारों साल पहले भी सिंध में पाया जाता था, मुझे दड़ों से निकला है। किसी ज़माने में तो एक पॉपुलर साज हुआ करता था, लेकिन अभी वो ख़त्म होता जा रहा है। तो यूनेस्को को गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिर रुजू किया और उन्होंने इसको रखा है इस अक्टूबर में वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर करने के लिए। शुरा ने नुमाइश को एहसास की तस्वीर और सकाफत का जिंदा मुजाहिरा करार दिया। सिंध के रंग न सिर्फ फोटोग्राफी का शाहकार रहे बल्कि कौमी विरसे के भी आकाश बने। सिंध की तहजीब और सकाफत के खूबसूरत रंग इस नुमाइश के जरिए बिखेरे गए। जहां पर सकाफत की अहमियत को उजागर किया गया, वहीं पर नौजवान नस्ल में इसे मुंतकिल करने की भी कोशिश की गई। कैमरामैन नवेदुर रहमान के साथ राहिल बेग, सिटी 21।